अगेन मनी इज़ हेयर एंड आज मैं आई हूँ यहाँ गल्फ फूड फेस्टिवल में और हमें मिले हैं डो स्टोरी के बिजनेस हेड मिस्टर उस्मान. हेलो मिस्टर उस्मान. Thank you so much. How are you doing, Manisha? आई एम वेरी फाइन सर. हाउ आर यू? Yeah, thank you so much. We welcome you to the Dough Story stand here at Gulf Food and Zabil Hall 1. So this is the second year for us to be here, and Alhamdulillah, we've received a very positive response. We are looking for new customers, both in the Middle East as well as the North African region. So mostly this time round, the customers have come from this region. We've received less response from the European and the North American market, obviously, because of the COVID situation. But otherwise, the overall turnout has been very good, and we are very satisfied with it. Very good. So sir, what other initiative you are taking to attract European customers? Well, we already are exporting to a number of European countries, as well as we are exporting to the East Coast in the US as well as in Canada, and our product is already going to Australia. So it's been 1 year since we launched the Dough Story brand. Alhamdulillah, in 1 year we've almost launched the brand in about 10 countries. And this year we plan to add more to our list, and similarly, other than frozen products, we also have a complete ambient range, and we plan to market that as well. So before coming here, you must have set certain benchmarks. So have you achieved that? Yes, well, obviously, the first thing was that we reach here. We faced a little bit of issues while traveling to UAE, obviously because of the extra safeguards because of the COVID situation. But Alhamdulillah, once we are here, everything looks very safe. The environment, the traveling, everything is all, we are feeling very comfortable here. And yes, we did fix some expectations and some benchmarks for us. And so far we've done well on that. Congratulations for that. And yes, due to COVID also, the business had gone bit down, but still people have achieved and they are much more satisfied here. Thank you so much, Mr. Thank you so much. And yeah, the one thing is that just to add that what I feel is that all the visitors who are coming here, they already know the COVID situation. So it's not going to be any surprise after this exhibition. Last year we received a very good response, but then as the visitors went back home, suddenly there was a global pandemic, and because of that the business slowed down. But this year we are expecting that whosoever is visiting us, he is pretty confident about the situation, and we expect to do good business. Thank you. Thank you so much, Mr. Hi sir, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका तशरीफ़ आवरी का. आज से पहले भी ये चैनल तशरीफ़ लाए थे, तो डिस्कस कर रहे थे हालिया हालात के ऊपर कि कैसा जो गल्फ़ फूड है 2021, उसके ऊपर हमारी काफ़ी देर से बात हुई. तो थैंक यू वेरी मच, आज तशरीफ़ लाए. सर, इतने साल हो गए आपको, इतने एक्सपीरियंस हैं आप, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली. तो सर, क्या एक्सपीरियंस रहा है इस साल का एज़ कम्पेयर टू अदर ईयर्स? मैं दोबारा यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा और आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से इस साल जो हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, उसके लिए हमें ये था कि जो यूरोपियन कम्युनिटी है बिल्कुल नहीं आई इसमें. आज चूँकि 4th डे है इस शो का, तो हमें उम्मीद थी कि आखिर 1-2 दिन में कुछ लोग आएंगे फॉरेनर्स, लेकिन अब बदकिस्मती की वजह से, फ़्लाइट ना होने की वजह से उन्होंने मादरत कर ली, और जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो लोगों की जो गेस्ट हैं वो नहीं तशरीफ़ ला सके.
लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी भरपूर इस शो में हिस्सा लिया। तकरीबन 64 के करीब आपके ये आए हैं एग्ज़िबिटर पाकिस्तान की से। तो आप देखेंगे इस जो हॉल नंबर 1 है, मोस्टली इसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी है और प्राइवेट सेक्टर्स के से बहुत अच्छे लोग आए हैं। और टी टैप ने भी इस दफ़ा काफ़ी अच्छा अपना अरेंजमेंट किया है। अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं आ सके तो अलग बात है। तो इसकी वजह से हमें जो अवेयरनेस है हमारी इस साल अपने प्रोडक्ट्स की चूँकि नहीं हो सकी, लेकिन मेन मकसद ये होता है ना इस शोज़ का, माल बेचना नहीं है। ये आपकी जो वर्ल्ड की कम्युनिटी, आपके जो कस्टमर हैं वो तशरीफ़ लाते हैं, आप उनके साथ 1-to-1 मीटिंग्स कर सकते हैं, जो उनके मसले मसाइल वो सुनते हैं। क्योंकि आप हर वर्ल्ड में जो फर्ज को मेरे 50 कंट्रीज़ में जा रहे हैं और मैं 50 कंट्री पूरे साल भी नहीं फिर सकता। इधर 50 में से 30 कस्टमर में आ जाते हैं, उनके साथ 5-10 मिनट हमारे गुफ्तगू हो जाती है। जो मसले मसाइल को हमारे वो हम अपने शेयर कर लेते हैं। तो उससे ये बेहतरी होती है कि हम अंडर वन रूफ़ तो हम अपनी जो बात है उन तक पहुँचा सकते हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं हम हमारे तक पहुँच सकते हैं। तो वो विदिन 5 डेज़ पे हम ये पूरा प्रोसेस जो 1 साल का होता है एक कंप्लीट कर लेते हैं। मेन मकसद हमारा ये होता है। तो इसमें कुछ परसेंटेज हमें नए कस्टमर में भी वॉक इन हो जाते हैं, कुछ हमारे पुराने आ जाते हैं। तो इसलिए ये शो काफ़ी हद तक कामयाब होता है। लेकिन बदकिस्मती से इस साल हमें इसका कोविड की वजह से ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वीज़ाज़ इन यूएई एंड अदर यूरोपियन फ़्लाइटें बंद होने की वजह से लोग नहीं आ सके। तो लेकिन फिर भी हम यूएई गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे हम इधर तशरीफ़ लाए और आपने डिस्प्ले किया है। तो क्यों यूएई के साथ हमारा भाइयों वाला रिश्ता है। ये यूएई गवर्नमेंट पाकिस्तान का बड़ा ख्याल करती है, बिज़नेस कम्युनिटी का बड़ा ख़ास तौर पे ख्याल करती है। तो हम चाहते हैं कि यार हम दोनों मिल के अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें। हमारा जो ये ब्रांड है ये इधर भी अवेलेबल है, यूएई में भी है, मिडिल ईस्ट में भी काफ़ी हद तक है। इस वक्त 26 कंट्री में हम दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ये जो प्रॉब्लम आई है तो नेक्स्ट साल उम्मीद है कि ये चीज़ें नहीं होगी। तो अब हम इसी होप फॉर द बेस्ट कि हम इसको बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकेंगे इंशाल्लाह। एक एक्सपीरियंस बिजनेसमैन हमेशा एक चैम्पियन की तरह उभरता है टू फेस ऑल द चैलेंजेस। तो सर अपने यंग एक्सपोर्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ? यंग एक्सपोर्टर के लिए ये है कि आप दिल लगा काम करें, शॉर्ट चीज़ों को शॉर्टली ना देखें, डीपली इसको जाएं, मेहनत करें और आप इसके इंशाल्लाह ज़रूर इसमें आपको कामयाबी होगी। तो कुछ हज़ात होते हैं कि ओवरनाइट काम आ जाए। आज मुझे 30 से 32 साल हो गए हैं। मेन जो फील्ड है मेरी उसकी स्टील की है और 20 साल मुझे राइस में भी हो चुके हैं। और हमें बड़े बड़े बुरे हालात भी देखे हैं, बड़े चैलेंजेस हमने देखे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में देखे हैं। लेकिन आप कंसिस्टेंटली काम करते जाएंगे तो आपको अचीवमेंट जो आपके दिमाग में अचीवमेंट है आपको मिलेगी। लेकिन उसके लिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग ना करें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें और मेहनत के साथ और हॉनेस्टी के साथ काम करेंगे तो यू विल गेट योर आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है। इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू मिस्टर अजीम, थैंक यू सो मच। वेलकम जी, बड़ी खुशी हुई आप तशरीफ़ लाई। हमारे ख्यालात लोगों तक पहुँचेंगे और उसमें किसी को फ़ायदा भी होगा, ज़रूर होगा। और इसी तरह इंसान को अपने जज्बात हैं, अपना एक्सपीरियंस दूसरे तक पहुँचाने में आपकी वसालत से हमें ये मौका मिला। आपका भी बहुत शुक्रिया। तो हम समझते हैं कि ये जो मैसेज हैं ये हमारी दोनों ममालिक की कम्युनिटी के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू सो मच।